वही लाएगी। अशोका का राज तो बस वही लाएगी और सपना कांशी भीम का पूरा कर ही डालेगी। एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी। एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी, एक दिन बहन जी भी लाल किले से बोलेगी। बात न्यारी है वो करोड़ों में भारी है, करोड़ों में भारी है, वो करोड़ों में भारी है। बचपन से लेके आज तक बहना की जंग जारी है, बहना की जंग जारी है, बहना की जंग जारी है। सर्वजन को एक ही तराजू में तोलेगी और मुर्दों में भी। चलेगा, हो तुम्हारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
எங்கள் ஓட்டில் பிஎஸ்பி ஆட்சி நடந்தே தீரும் நடந்தே தீரும் நடந்தே தீரும் நடந்தே தீரும் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தமிழகத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இளம் தலைவர் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் ஆகாஷ் ஆனந்த் அவர்களே, தமிழகத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருங்கிணைப்புனா தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய மக்களிடம் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நம்மளுடைய ஐயா அசோக் சித்தாஜி அவர்களே, அன்பு சகோதரர் தேவேந்திரன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் கமலச்செல்வர் அவர்களே, மாநில அலுவலக செயலாளர் அன்பு சகோதரி தமிழ்மதி அவர்களே, மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் கல்யாணசுந்தரம் அவர்களே, மாநில பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் இளமான் சேகர் அவர்களே, மற்றும் மாநில பொறுப்பாளர்களே, மாவட்ட பொறுப்பாளர்களே, சட்டமன்ற பொறுப்பாளர்களே, ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களே, நகர பொறுப்பாளர்களே, செக்டார் பொறுப்பாளர்களே, பூத் பொறுப்பாளர்களே, அனைவரும் ஜெய்பீம் கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தேர்தலில் நம் தமிழகத்தெல்லாம் பார்க்கிறோம், எல்லா கட்சிகளும் பிரச்சாரம் செய்யறத பார்க்கிறோம். நாட்டுடைய பிரதமர் கூட தமிழகத்தில் 7 முறை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக வந்தார். அந்த கூட்டணி பேரு என்டிஏ கூட்டணி. அதுக்கு எதிராக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா கூட்டணி என்ற ஒரு கூட்டணி அமைஞ்சது. முதல் அந்த இந்தியா கூட்டணின்றது பீகார்ல இருக்கக்கூடிய தலைநகரத்தில் நிதிஷ்குமாரோடைய தலைமையில் அந்த கூட்டணி அமைஞ்சது. அந்த கூட்டணி அணையும் போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்களும் இணைஞ்சு மக்கள்கிட்ட கை தூக்கி அவங்களுடைய பலத்தை காட்டினாங்க. நம்மளுடைய தேசிய தலைவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, இந்தியா கூட்டணின்றது கைகள் மட்டும் தான் இணையுது, இதயங்கள் இணைகிறது இல்லை அப்படின்னா. இதயங்கள் இணையல, கைகள் மட்டும் தான் இணைஞ்சதுன்னாங்க. நிறைய பேர் கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டாங்க, ஏன் நம்மளுடைய தேசிய தலைவர் பெகஞ்சி அவர்கள் இந்தியா கூட்டணி கிட்ட போலன்னு. இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே எந்த தலைமையில முதல் கூட்டம் நடந்ததோ அந்த நிதிஷ்குமார் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு என்டிஏ கூட்டணி மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டணியில் போய் சேர்ந்துட்டார். அவங்க சொன்ன வார்த்தை முதல் நாளே இந்த வார்த்தை சொன்னாங்க, இந்தியாவுக்கு இந்தியா கூட்டணிக்கு தலையில்லாத ஒரு முண்டமா இருக்குது. அந்த கூட்டணி தலையில்லாத ஒரு முண்டமா இருக்கு. 55 ஆண்டு காலமா காங்கிரஸ் தலைமையில் இந்த நாட்டை ஆண்டாங்க. இப்போ அவங்க மக்கள் கிட்ட வாக்குறுதி கொடுக்குறாங்க, ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கணும், அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கணும். 55 ஆண்டு வாழ்ந்துட்டு ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் இப்பதான் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறேன்றாங்க, அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கணும்ன்றாங்க. இது ஒரு வேடிக்கையா இருக்குது. இது ஒரு வேடிக்கையா இருக்குது. நீங்க பாக்குற இந்தியா கூட்டணியில கேரளால ராகுல் காந்தி போட்டிடுறாரு, அதை எதிர்த்து கம்யூனிஸ்ட் போட்டிடுது. தமிழ்நாட்டில் பார்க்குற 4 தொகுதி கம்யூனிஸ்டுக்கு போட்டிடுது. எந்த தலைவரை அந்த கட்சியுடைய தலைவரை எதிர்த்து போட்டிடுற அதே காங்கிரஸ் 4 கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆதரவு திரட்டின்னு கூட்டணி பேர்ல மக்கள்கிட்ட போறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கையான விஷயமா இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லா கட்சியும் பார்க்கிறோம். என்டிஏ கூட்டணி நாடு நரேந்திர மோடி பாரத பிரதமர் வரும்போது ஒரு 10 கொடி இருக்குது ஒரு வாகனத்தில், அவருடைய வாகன பிரச்சார வாகனத்தில். ராகுல் காந்தி வர்றாரு, 10 கொடி இருக்குது. அந்த கொடியெல்லாம் பார்க்கும்போது கூட்டணி என்ற பேர்ல அந்த கொடியெல்லாம் நாட்டை ஃபுல்லா ஜனநாயகத்தை உருவாக்குவோம், வறுமையை ஒழிப்போம், ஜாதியை ஒழிப்போம், பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தணும். இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க எந்த கொடி இல்லாத ஒரே கொடி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கொடியை கொண்டு இந்தியா முழுக்க போகுதுன்னா அது பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தான். ஒரே கொடி. நம்மளுடைய வாகன பிரச்சாரத்தில் பாருங்க, 39 வேட்பாளர், பாண்டிச்சேரி உட்பட 40 வேட்பாளர் போறாங்க. ஏதாவது வாகனத்தில் ஒரு கொடி இருக்குதா?
ஏதாவது இருக்கா? ஒரே கொடி, என்ன கொடி? நீலக்கொடி, யானை சின்னத்தை போட்டுன்னு போற ஒரே கட்சி எதிரானா நம்ம ஒண்ணுதான். அதனால இந்த கட்சியில நம்ம போட்டியிடுறது பெருமையான விஷயம், கௌரவமான விஷயம், தன்மானமான விஷயம், சுயமரியாதையான விஷயம். ஆகையால் நிறைய பேர் அறிவுஜீவியா இருக்கக்கூடிய, அரசியல் இருக்கக்கூடிய, அறிவுஜீவியா இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் பார்க்கிறோம், ஏன் கூட்டணி சேரல? நம்ம கூட்டணி சேர்றது இல்லை, ஒரு கொள்கை கோட்பாடு இருக்கணும். எந்த கொள்கை கோட்பாடு இருக்குதோ அந்த கட்சி கூட கூட்டணி சேரலாம் வெகஞ்ச சொல்றாங்க. எந்த கட்சி கூட கொள்கை கிடையாது, கோட்பாடும் கிடையாது. கொள்கை கோட்பாடோடு இருக்க ஒரு கட்சி, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய கனவை நனவாக்குற கட்சி பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தான். அந்த கட்சியில போட்டியிடுற வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆகாஷ் ஆனந்த் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம். Akash Anand ji to present keynote speech after the great Bahujan class. Ready? 1, 2, 3, start! எல்லாருக்கும் ஜெய் பீம். सबसे पहले मैं आप लोगों से आज एक वादा करता हूं कि जब भी आप लोगों के बीच में आऊंगा तो हर बारी अपने भाषण का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारी यहाँ की भाषा में देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, आज अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं यहाँ मौजूद हमारे स्टेट्स के सभी लीडर्स, के आर्मस्ट्रॉन्ग जी, राजा वैल्यू जी, कल्याण सुंदरम जी, माइकल डॉस जी, मानीवानन जी, देवेंद्रन जी, इलामार सेगर एवं भानवी जी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की चुनावी जनसभा को इतना सक्षम पर करने के लिए अपना पूरा दिन रात एक कर दिया। तो आपके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं, हम सबको सुनने आए हैं, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार राम स्वामी जी, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व प्रदान की है। साथियों, बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से मैं भी अब आपके साथ जुड़ चुका हूं और इनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव
अभी हमारे बीच में हम लोकसभा चुनाव के बीच में हैं और ये चुनावी जनसभा भी उसी के लिए आयोजित की गई। मैं आपसे इस लोकसभा चुनाव के बारे में यहाँ पे विपक्षी पार्टियों के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, भाजपा, डीएमके, एआईएडीएमके के साथ साथ कांग्रेस भी आप लोगों के बीच पर आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी आप वोट डालने से पहले इन सभी पार्टियों से आप 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे। साथियों, 3 मुद्दों से ज्यादा जरूरी एक मुद्दा है। इन तीनों में मैंने जो आपके सामने अभी नहीं रखा, परंतु सबसे पहले मैं वही आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, करप्शन का मामला यहां की पार्टियां के साथ साथ केंद्र सरकार में भाजपा अपने आप को एकदम साफ सुथरा बताती है, परंतु मैं आपसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। साथियों, मैं करप्शन और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में एक ही सेंटेंस में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में लिए हैं। इन 25 राजनीतिक दलों में से यहाँ की बीजेपी, डीएमके, एआईएडीएमके भी शामिल है। साथियों, अगर ये पार्टियां आपके बीच में आती हैं तो सबसे पहले आपको इनसे सवाल करना होगा कि ये जो आपने 16,500 करोड़ का चंदा लिया है धरना सेठों से, तो उसका फायदा आपने अपनी पार्टी चलाकर अपने लोगों का भला किया हो, परंतु हमारे समाज के लिए आप लोगों ने क्या काम किए हैं, इसका जवाब इस बारी वोट डालने से पहले आप लोगों को इनसे लेना होगा। एक तरफ ये धरना सेठों की पार्टियां और दूसरी तरफ आप सबकी पार्टी बीएसपी, जो साथियों अपने कार्यकर्ता के धन से चलने वाली पार्टी है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी आज ही नहीं बल्कि जब से फॉर्म की गई है तब से ही ये पार्टी अपने कार्यकर्ता के तन, मन और धन से इलेक्शन लड़ती आई है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। ये पार्टी आपके ही धन से चलती है और आपके लिए ही काम करती है। साथियों, सबसे पहले भाजपा के बारे में बात करते हैं। आजकल वो आपकी स्टेट में धुआंधार झगड़ा, फसाद करने में नंबर 1 है, परंतु उनसे यहाँ पर आपका वोट मांगने से पहले आपको सवाल करना होगा कि पिछले 10 साल से जब आप सत्ता में बैठे हैं तो आपने हमारे समाज के लिए क्या किया है। साथियों, 3 मुद्दे, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, जिस पे आपको उनसे सवाल करना होगा। साथियों, शिक्षा की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में हमने हर महीने सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स में जो पेपर होते हैं उनकी लीक होने की खबरें सुनी। साथ ही में पिछले 10 सालों में आज 8वीं कक्षा के बच्चे, 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। साथियों, आधे से ज्यादा बच्चे बेसिक इंग्लिश नहीं बोल पाते, ना समझ पाते हैं। साथियों,
ये जो बीजेपी की सरकार है ये डिजिटल इंडिया की बात करती है, परंतु आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, दूसरा सवाल जो आपको इनसे करना होगा वो है हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार का। साथियों, आज रोजगार के नाम पे जो बुरा हाल है वो इस कदर पहुंच चुका है कि आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, कुछ चंद क्लास 4 की नौकरियों के लिए हमारे यहाँ आज 90,000 से ज्यादा PhD स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, जब रोजगार का इतना बुरा हाल है तो ये लोग आपका दिमाग आपको भटकाने के लिए, आपको उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। साथ ही में मुफ्त राशन की स्कीम पर खाली भाजपा ही नहीं बल्कि यहाँ की DMK और AIADMK भी कुछ कम नहीं। तो साथियों, इस मुफ्त राशन की स्कीम से आप लोगों को हटकर उनसे सवाल पूछना होगा कि मुफ्त राशन में आप हमें 1,000-2,000 रुपए का महीने का राशन तो दे देते हो, परंतु अगर हमारा बच्चा, अगर हमारा युवा साथी रोजगार में होगा, अगर क्लास 4 की भी नौकरी लगाए तो 15 से 20,000 रुपए महीना कमाएगा। तो 1,000 रुपए के राशन के बदले 20,000 रुपए का चूना क्या आप लोगों को मंजूर है? जहां पे ये आपको 1,000 के बदले 20,000 रुपए का चूना लगा रहे हैं, वहीं पे इनसे महंगाई भी नहीं रुक रही है। साथियों, आज से 10 साल पहले पेट्रोल का दाम 50 रुपए हुआ करता था, परंतु आज यही पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है। और साथियों, जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वही गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले 400 रुपए का हुआ करता था। आज वही गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर चुका है। साथियों, सबसे ज्यादा चौंकाने की बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में उतरते हैं तो इलेक्शन में उतरने से 4 दिन पहले, महीना भर पहले इन्हीं दावों में 2-3 रुपया कम कर और एहसान जताते हैं कि वो अपनी जनता की फिक्र करते हैं, वो अपनी जनता को जताते हैं कि हमने तो दाम कम करने की पूरी कोशिश की है। साथियों, भाजपा देश के लिए ही सही, देश के साथ साथ यहां तमिलनाडु के लिए भी बहुत खतरनाक है। साथियों, भाजपा सरकार ने हमारे समाज को अंदर से कमजोर करने के लिए ये सोची समझी चाल चली है। हमारे बच्चों को वो पढ़ाना नहीं चाहते, हमारे युवा साथियों को रोजगार नहीं देना चाहते। तो साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार कहां से लेंगे, और अगर रोजगार नहीं ले पाएंगे तो आपका रिजर्वेशन भी कहां से मिलेगा। साथियों, ये इनकी सोची समझी चाल है ताकि हमारा समाज जो आज तक यहाँ तक पढ़ लिख कर आया है वो वापस कई 100 साल पीछे चला जाए। साथियों, जिस तरह बीजेपी है उसी तरह यहाँ पर DMK और AIADMK भी हाल है। ये दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये भी उतने ही खतरनाक है जितना यहाँ पर भाजपा की सरकार है। यही वो DMK सरकार है जिसके चलते हुए 2 दिसंबर 2022 में यहाँ पे हमारे एसी समाज के एक गांव के पानी में कुछ मानववादी सोच रखने वाले समाज के लोगों ने पानी सप्लाईज में ह्यूमन फीसिस डालकर उसको जहरीला बनाने की कोशिश की थी, परंतु 2022 से आज तक उस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लोग खुद ही सोचिए, जो सरकार हमारे समाज पर ऐसे हमला करते हुए लोगों को अगर गिरफ्तार ना कर सके
तो वो किसकी तरफ खड़ी है, आपकी तरफ या उन मनुवादी सोच रखने वालों लोगों की तरफ। साथियों, यही वो सरकार है जिसके चलते हुए जब हमारा युवा साथी अपने भगवान, अपने महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का टैटू हाथ पे बनाता है, तो उससे जलकर यहाँ के मनुवादी सोच रखने वाले लोग उसको मारपीट करते हैं। यही वो सरकार है जो ये हरकतें बर्दाश्त करती है। आज तक उस मामले में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे तो यहाँ पर आए दिन हमारे समाज पर अत्याचार होते रहते हैं, परंतु इस बारी आपको इन सब से अपना वोट डालने से पहले सवाल करना होगा कि अब और नहीं, अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे बाबा साहब, हमारे मान्यवर साहब एक नारा देकर गए थे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब उसी नारे को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। साथियों, आज आप लोग अपना इतना कीमती समय निकालकर हमें सुनने आए हैं, तो मैं इन विरोधी पार्टियों के अलावा हमारी बहन जी के कार्यकाल के बारे में आप लोगों को बताने आया। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहन जी की सरकार में बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को उनके पैदा होने पर ही बहन जी ने 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। तो साथियों, जैसा कि बहन जी ने बताया है कि बसपा कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बट बसपा का करा हुआ काम ही उसका मैनिफेस्टो है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आप बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो इसी स्कीम के तहत चलकर बहन जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हमारी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम करेंगी। में बहन जी ने अपनी सरकार के चलते हुए सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने का काम बहन जी ने किया था। साथियों, अगर हम बहन जी को दोबारा से, बहन जी को हम आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, तो बहन जी इसी योजना के तहत चलकर यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में हमारे सभी बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने का काम करेंगी। साथ ही में बहन जी ने बसपा की सरकार के दौरान अपने उत्तर प्रदेश में 12,500 करोड़ की लागत से SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया था। तो आगे चलकर बहन जी पूरे देश में अपने सर्व समाज में से पिछड़े समाज के साथ साथ सर्व समाज के गरीबों भाइयों और बहनों को अपना खुद का छत, अपना खुद का घर देने का काम करेंगी। साथियों, बहन जी ने अपने शासनकाल में अकेले उत्तर प्रदेश में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया। 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज में से कमजोर लोगों को अपनी बात नाम दे सरकारी नौकरियों लोगों से एक बार यही अपील करता हूं बहन जी ने कि हमारे अपने प्रदेश में तमिलनाडु में ये कुछ नौकरियां देने का काम हमारे लोगों को उसी प्रत्याशी को खड़ा किया गया है। भारत में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर दबाकर तो यहाँ बहन जी देश में करोड़ों युवाओं को और हमारे सभी प्रत्याशियों को पार्लियामेंट भेजने का काम करें, और यहाँ पर बहन जी के साथ हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। साथियों, आज अपनी बात यहाँ खत्म करने से पहले मैं एक बारी फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी BBF के जवान साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और यहाँ पर मौजूद हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथियों और हमारे यहाँ पर
रॉकस्टार, रैपर्स, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। एक बारी फिर से हमारे सभी प्रत्याशियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, और आप लोग प्लीज इन्हें वोट देकर पार्लियामेंट में भेजने का जरूर काम करें।